Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the minimum size of the plane mirror in which a man can see his full height? Explain. So, as a key concept, we must know कि for a plane mirror, उसके characteristic we need to describe. So, let's say we have a plane mirror and उसके सामने we have an object placed, right? और वो object की distance है L from the mirror. So, the image, that is, we can say the image will be created at the same distance from the mirror, right? So ये एक characteristic होती है property of mirror. Plane mirror के बारे में we are talking about, right? Also we know कि जो image form होती है mirror से, that is virtual, erect and of same size. ठीक है? So these are few important property or characteristic of the plane mirror. All right. Also we can say कि यहाँ पे जो image का size है वो भी same ही है, जो जैसे object का size है. So now we can say, let's consider a case where we can say there is a plane mirror and इस mirror के सामने we have an object. ठीक है, ये object मान लेते हैं हम. Let's say this is the object. So we know कि object is at a distance, let's say L. So same दूरी L पे इसकी image बनेगी. So first of all we can say, थोड़ा सा object को और बड़ा बना लेते हैं. Let's suppose this is the head, this is the eye and this is the feet. ठीक है. So in order to see his head, we can say यहाँ पे भी जो image form होगी that will be the same. यहाँ पे head आएगा, यहाँ पे feet and यहाँ पे कहीं eye दिखेगी. ठीक है. So अगर head देखना है, so we can say we can draw a ray diagram, right? So we can see that के जब आँख, the ray will enter his eye from the head. ठीक है, कुछ इस तरीके से. बट एक्चुअल में रे आ कहाँ से रही होगी? यहाँ से. इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम देयर, बट ये आ रही होगी यहाँ से, राइट? ऑल्सो सिमिलरली अगर फीट हमें देखना होगा, सो फीट के लिए कुछ इस तरीके से आएगी रे, राइट? एंड एक्चुअली में ये रे आ कहाँ से रही होगी? यहाँ से. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि दिस इज हाउ वी कैन सी द हाइट, that is head and the feet. ठीक है. अब from here we can do a little bit construction and we will try to analyze the given situation. ये head आ गया point, ये E आ गया, H dash कह देते हैं, E dash कह देते हैं, F dash कह देते हैं, right? इसे अब यहीं से we can see कि कुछ further notification डाल देते हैं यहाँ पे. point P, point Q and let's say मान लेते हैं हम इसको point R. ठीक है. So from the figure we can say ये distance भी L हो जाएगा, same distance पे image form होगी. ठीक है. अब by the geometry we can just apply the geometry over here. So in triangle we will consider this triangle जो हम यहाँ पे redraw कर रहे हैं. So this is our point P, this is our point Q, this is H dash, this is E dash and this point is E. So by basic proportionality theorem हम क्या लिख सकते हैं? H dash upon E dash will be equals to H dash upon E dash upon PQ will be equals to E dash upon EQ, right? So this is what the basic proportionality theorem says. ठीक है. अब लेट्स से हमने ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मानी थी, ये हमने मानी थी लेट्स से H. ठीक है. H हाइट का हमने ऑब्जेक्ट को माना था और यही सेम हाइट ये इसकी भी होगी. ठीक है. इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं y. सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से H dash E dash upon PQ.
पी क्यू क्या मिला है हमें, x मिला है, राइट. एंड वी कैन से ई, ये जो वैल्यू है ई डैश की, ई डैश क्या है हमारे लिए, ई डैश इज नथिंग बट इट इज एल प्लस एल, दैट इज 2l, राइट. और ई क्यू क्या है हमारे लिए, ई क्यू इज जस्ट एल, ठीक है. सो एल एल विल गेट कैंसल आउट. अब यहाँ से फ्रॉम दिस वी कैन से एच डैश ई डैश और पी क्यू तो हमारे लिए x है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से एच डैश ई डैश विल बी 2 इंटू पी क्यू, यानी कि 2 इंटू एक्स, ठीक है. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब सिमिलरली वी विल कंसिडर द लोअर ट्रायंगल. लोअर ट्रायंगल वी कैन सी फ्रॉम द फिगर. यहाँ पे ये है पॉइंट Q, ये है हमारा पॉइंट R, ठीक. एंड ऑल्सो वी कैन से दिस इज वैल्यू E डैश एंड दिस इज F डैश, और ये पॉइंट है हमारा E. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अगर ये हमने मिरर माना था यहाँ पे, सो मिरर एक्चुअली में कितना यूजफुल आ रहा है, वी कैन क्लियरली सी के जो अपर सेक्शन है ये वाला, इसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड दिस लोअर सेक्शन कैन बी डिस्कार्डेड. ओनली दिस मच मिरर इज यूजफुल, दैट इज पी आर लेंथ का, राइट. सो यहाँ पे भी अगेन अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएं, सो वी कैन राइट ई डैश एफ डैश अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल्स टू ई डैश अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास ई क्यू, राइट. अब ई डैश अगेन 2l है और ई क्यू जो है हमारे पास अगेन इट इज l. सो 2l अपॉन l विल बी अगेन 2. सो और क्यू आर हमारे पास y है, सो वी कैन से ई डैश एफ डैश विल बी 2y, राइट. अब वी नो के जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, राइट. दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए एक्चुअली में, इट इज h डैश ई डैश प्लस ई डैश एफ डैश. सो वी कैन राइट इट ओवर हियर एज h dash e dash plus e dash f dash, and that will be equals to 2x plus 2y, that is 2x plus y, ठीक है. So from this we can say h will be equals to 2 into x plus y will be the height of or the size of the mirror, right. So we can say, and that will give us the value as h by 2. So this will be the what, size of मिरर. यानी कि अगर फुल साइज इमेज देखनी है एच हाइट के पर्सन को, सो द इमेज साइज रिक्वायर्ड विल बी हिज हाफ द height, right. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.